Yes, Vite, this was the question which I asked you to do from the book. You can complete it later on. Today, firstly, I want to start with next question. Please write down. Picture may not be very clear, but I can speak all the values. You can note down. Compare the statement is compare the percentage contribution of different sectors in the national income. Compare the percentage contribution of different sectors in the national income, comma, by using pie diagram. By using pie diagram. Okay? Below that, this is the statement. Means the hint we have got ki by making use of pie diagram, we have to compare the data. Now, how to do that? Firstly, write the statement table. First column sector. फिर second column is year. Year के नीचे further two parts are there. 2012-13 और second year है 2013 and 14. ठीक है? Below sector, please write primary sector, secondary sector, tertiary sector. Primary, secondary, tertiary. And the values which are given below 2012-13 year, those values are 17, 57, 26. 17, 17, 17, 57, 57, 26, 26. Secondly, 2013-14 values are 16.7, 16, 16.7, फिर 26, then 57.3. ठीक है? Now, first of all, please read the statement, very first line of the statement. What is given? Compare the percentage contribution. That means these values, these data which is given to us, that is already in percentage form. ठीक है? अगर percentage में ना हो तो पहले we have to convert in percentage form. But now here most of the time percentage में ही values are already given. So how can we cross check? You can just do the totals of these values. Column को आप total करके check कर लीजिए. 2012-13 का total, it is coming out to be 100. And 2013-14 total, it is again 100. ठीक है? How have we come to know? Because ये ऊपर दिया हुआ है, ये percentage में ही values हैं. तो all these are in percent. ठीक? Now, what is the first step in the solution? Firstly, here you will write sector. ठीक है? ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं बोल देती हूँ primary, एक line छोड़ के फिर secondary, then again leave one line tertiary. Then now we have to convert. Earlier in the previous question, there were values related to only 1 year. मतलब एक ही कोई फैमिली का एक्सपेंडिचर था, उसकी वैल्यूज थी. अब हमें 2 years हैं, इसका मतलब we have to prepare 2 pie diagrams. 2 circular diagrams are to be drawn. And then that means we have to convert this data into degrees. पहले we will convert this data of 2012-13 into degrees. फिर उसके बाद ये 13-14 का डाटा अगेन इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक? First, that means first part of our solution is the conversion in degrees. So how to do that? पहले आपने again write the same value. Percentage share 2012-13 का कितना है? We have written again the same 17, 57, 26. Total is 100. ठीक? उसके बाद अब इस 2012-13 की वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो here we will write share in terms of degrees. Share in terms of degrees. As we done on that day, same thing, share in terms of degrees. ठीक है? अब how to, now we know in a circle how many total degrees are there? 360 degrees. ठीक? तो क्या करेंगे? First value primary sector की 17, तो 17 divided by its total 100 into 360 degree. 17 divided by 100 into 360 degree. ये आ रहा है 61.2 degree. This is coming out to be 61.2 degree. फिर टेक सेकेंड वैल्यू 57 सेकेंडरी सेक्टर, तो ये आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360. 57 over 100 into 360. अब लेटर ऑन यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक द कैलकुलेशन, अदरवाइज अभी चेक करने लगेंगे फिर इट विल टेक टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम हियर. सो यू कैन नोट डाउन जस्ट डायरेक्टली 205.2 डिग्री, 205.2 डिग्री. एंड थर्ड आ रहा है 26 over 100 into 360,
it is coming out to be 93.6 degree. 93.6 degree means simply for 1 year, ये वाला जो year है इसकी जो percent values हैं, firstly we have just converted them into degree form. और डिग्री का कैसे पता चलेगा, डिग्री का कौन सा पार्ट, इन ए सर्कल टोटल 360 डिग्रीज आर देयर. तो मतलब ये है कि अगर 100 में से इतना है 17 तो 360 में से कितना होगा, दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ नेक्स्ट इज प्लीज डू द टोटलिंग, इट शुड बी इक्वल टू 360. ठीक है, अगर 360 ना आए तो यू कैन एडजस्ट द दीज डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट. यू हैव टू एडजस्ट इन दिस मैनर कि आपका टोटल शुड बी इक्वल टू 360. नाउ द सेम वे we have to calculate percent this share in terms of degrees for second year, ये 2013-14. तो no need to write these sectors again, इसको नहीं लिखना है. We can continue towards the right side. तो यहाँ लिख लिया हमने again same values percentage share in 13-14. ठीक है, ये वाली values write again 16.7. then we have written ये same 26, ये लिख लिया 26 and last is 57.3. this value 57.3. now the last column, share in terms of degrees. share in terms of degrees. ठीक है, मतलब पहले फर्स्ट ईयर के लिए डिग्रीज में बना लिया, अब नाउ सेकेंड ईयर की वैल्यूज को डिग्री में करना है, चेंज करना है. तो ये टोटल है, परसेंट का टोटल इज ऑलवेज 100. आप लिखना चाहो तो यू कैन राइट हियर 100. तो अब क्या करेंगे, 16.7 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360. 16.7 फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल 100 इंटू 360. तो ये आ रहा है 60.12. 60.12 डिग्री. ठीक, अच्छा अब इसको हम मान ले, अभी पहले यहाँ रुक जाएं, कैसे करना है फिर मैं बताती हूँ. देन सेकेंड वैल्यू इज 26. तो 26 ओवर 100 इंटू 360 डिग्री, ये आ रहा है 93.6 डिग्री. सेकेंड आंसर इज कमिंग 93.6. Last value is 57.3 divided by 100 into 360 degree. तो ये आ रहा है 206.28. 206.28. ठीक है जी. अब आपने क्या करना है, पहले अपने रफ वर्क में ये चेक कर लेना है टोटल. अगर हम एज इट इज ही लेते हैं, 2 डिजिट्स का लेते हैं, तो हमारा टोटल एग्जैक्ट 360 नहीं बन रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है. तो देन वी कैन जस्ट हैव ए सिंपल लुक कि अगर हम एक ये राउंड ऑफ कर दें तो हमारा टोटल इजीली बन जाता है. ये अगर हम ले लेते हैं इसको 60.12, अब 1 के बाद ये 2, इट इज लेस देन 5, तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल इन राउंडिंग ऑफ दिस वैल्यू. ये ऐसा ही रह जाएगा 60.1 डिग्री. ठीक है, और ये ऑलरेडी एक ही डिजिट है, इसको कुछ नहीं कर सकते. कमिंग आउट टू बी हेयर 206.28. अब ये 8 इज मोर देन 5, तो ये 2 हो जाएगा, इसके करके 3 बन जाएगा. ठीक है, तो ये और हम इसको लिख सकते हैं 206.3 डिग्री. अब अगर हम टोटल करें 206.3, 93.6 एंड 60.1, तो देन वेरी इजीली वी आर गेटिंग टोटल 360. ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मेनी ऑफ यू मे बी थिंकिंग कि कभी कहते हैं राउंड ऑफ कर लो, कभी नहीं. तो ऐसा कोई देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. हमने बस ये थोड़ा सा ब्रॉडली वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये टोटल हमारा 360 बनना चाहिए, बिकॉज सर्कल में 360 ही डिग्रीज होती हैं. तो बस दिस इज द मेन आइडिया दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. नाउ इन योर गिवन रजिस्टर और योर शीट, नाउ सिंस वी आर गिवन 2 years फॉर कंपेरिजन, इसका मतलब 2 पाई डायग्राम्स आर टू बी ड्रॉन. सो टू ड्रॉ 2 सर्कल्स of appropriate size, but please keep the size same. ठीक है, जितना रेडियस आप यहाँ से ले रहे हो तो उतने ही रेडियस से यहाँ से आपने ड्रॉ करना है. It should not be कि one circle is large and one circle is small in size. That should not be there. 2 circles of same size are to be drawn. ठीक है, अपने स्पेस के अकॉर्डिंग. एंड वन अदर थिंग, प्लीज ड्रॉ दीज सर्कल्स हॉरिजॉन्टली, ऊपर नीचे करके नहीं बनाए, क्योंकि जब कंपैरिजन करना होता है ना, तो 2 थिंग्स व्हेन दे लाई ऑन द सेम स्पेस, आमने सामने पड़ी होती हैं, तो ही इजीली वी कैन कंपेयर. ऊपर नीचे होती हैं तो फिर वो मतलब इतना ठीक नहीं लगता है. सो सर्कल्स ऑफ सेम साइज. ठीक है, देन फ्रॉम द सेंटर को हमने नाम दे दिया O, ओरिजिन. ठीक, यहाँ रेडियस जितना भी है आपका, वो आप उसकी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ योर स्केल. नाउ टेक योर प्रोट्रैक्टर. ठीक है, अब हमने पहले फर्स्ट ईयर के लिए बनाना है. फर्स्ट ईयर इज 2013.
ये 12 13, फर्स्टली वी विल शो दीज वैल्यूज। तो फर्स्ट डिग्री 61.2, ठीक है। तो यहाँ ओरिजिन के सेंटर के ऊपर अपना डी रख के, प्रोटेक्टर रख के, यहाँ से आप चेक करिए विद द हेल्प ऑफ योर डी 61.2 डिग्री। अब आप देखो 61.2 इतना माइन्यूट तो नहीं होता है, मतलब उतना तो उसके बीच का मार्जिन ही नहीं होता है, तो अंदाजे से 61 के आसपास। 100% एक्यूरेसी विल नॉट बी देयर, क्योंकि 0.61 और 2 के बीच में भी कितना डिफरेंस होता है, वेरी लेस इज देयर। तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 61.2 यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। देन यू पिक अप योर डी, उसको एक साइड पे रख के विद द हेल्प ऑफ स्केल यू ड्रॉ दिस लाइन शोइंग दिस 61.2 डिग्री एंगल। यहाँ आपने एंगल आपका आ गया तकरीबन 61.2 के आसपास, ठीक। अब ये परसेंट वैल्यू कितनी है, सी दिस टेबल, दिस परसेंट वैल्यू इज 17। तो यहाँ हियर वी हैव रिटन 17, वी डोंट हैव टू राइट 61.2, बुक में दिस इज गिवन रॉन्ग, बुक में डिग्रीज लिखी हुई हैं, बट यू डोंट, यू आर एडवाइज नॉट टू राइट डिग्री, बट यू हैव टू राइट द परसेंटेज शेयर। डिग्री सिर्फ बनाने के लिए है, शेयर हमने परसेंट में लिखना है। सेम वे फॉर द अदर सर्कल, इसके नीचे आप लिख लो 2000, नीचे या ऊपर कहीं भी लिख लो 2013-14। अब यहाँ पे रेडियस पे कीप योर डी एंड नाउ सी द वैल्यू ऑफ द एंगल दैट इज 60.1 डिग्री, ठीक, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। तो यहाँ रख के अपना डी को यू चेक योर एंगल 60.1, तो ये आपका पॉइंट बाहर आ जाता है ना, डी थोड़ी बड़ी होती है सर्कल से, मतलब आपके साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पॉइंट लगा लिया, नो प्रॉब्लम। देन विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन दिस पॉइंट, ड्रॉ दिस एंगल, ये लाइन आपकी आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द परसेंट वैल्यू, दैट इज 16.7। तो हियर वी हैव रिटन 16.7, ठीक। अभी मैंने ये फर्स्ट पिक्चर है, अब आप देखिए जरा, अब नाउ इट इज क्लियर। वो एक पार्ट हो गया, अब आपने क्या करना है, नाउ सी द सेकंड एंगल दैट इज 205.2, पहला ईयर ले लेना है, ठीक है। ये 2012-13 का सेकंड डिग्री है 205.2। अब आपका ये जो नया पॉइंट था जहाँ ये आपका पहला एंगल फिनिश हुआ था, नाउ यू टेक दिस लाइन एज योर रेडियस, यू कैन सी दिस कर्सर, ये लाइन को जहाँ पे मैं कर रही हूँ इसको आपने अपना बना लेना है बेस, रेडियस। अब इसके ऊपर आपने रखना है अपना डी एंड नाउ सी द वैल्यू ऑफ एंगल दैट इज 205, ठीक। थोड़ा सा अपनी शीट को रोटेट कर लीजिए, रोटेट योर नोटबुक, ठीक है। ये बेस बन गया, पहले वाला को नहीं लेना, वो खत्म हो गया, नया बेस लेना है ये वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर कीप योर डी एंड नाउ चेक योर एंगल 205.2। अब आप देखो डी में टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, यही होता है ना 180। इसका मतलब समथिंग एल्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी एडिड इन 180 ताकि हमारा टोटल बन जाए 205, ठीक। तो यहाँ पर आपने पहले जब अपनी डी रखी तो ये ऑलमोस्ट यहाँ ऐसे स्ट्रेट आपकी, मतलब हाफ ऑफ द सर्कल तो हो गया 180। तो ये मैंने थोड़ा सा इधर लिखा था, आप अपना कॉपी पे चेक कर लो। नाउ देखो जरा 205.2 में से माइनस करिए 180, कितनी और डिग्रीज चाहिए आपको, यू विल नीड 25.2, तभी बनेगा ना 205.2, 180 में 25.2 और ऐड करें, ओनली देन वी गेट एन एंगल ऑफ 205.2। तो इसका मतलब हो गया कि जब आपने व्हेन यू हैव केप्ट, यू हैव टेकन योर दिस रेडियस एंड केप्ट योर डी हियर, तो 180 तक तो जितना हो गया वो ले लेना है। उसके बाद थोड़ा सा और अपनी कॉपी को रोटेट करके, ठीक है, ये पॉइंट लगा लेना है 180 के ऊपर ही, पेंसिल से लाइन भी एक ड्रॉ कर लेनी है। फिर दोबारा से रोटेट योर नोटबुक और उसके बाद और एंगल आपने लेना है, मतलब उसके आगे का एंगल और लेना है 25.2। फिर जाके आपका ये टोटल जो 25.2 वाली लाइन होगी, ये पॉइंट था, इफ यू कैन सी हियर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। पहले आपने 180 पे एक पेंसिल से डॉटेड या लाइट सी लाइन ड्रॉ कर लो, 180 हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ, ठीक है। वो डॉटेड लाइन को फिर अपना कॉपी को रोटेट करके उसको मान के अपना रेडियस, उसके बाद 25.2 डिग्री का एक और एंगल आपने ले लिया, ये पॉइंट आया, ठीक। अब आपने ये लाइन को डार्क करना है और जो फर्स्ट वाली लाइन थी 180 वाली उसको इरेज कर दीजिए, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन 180 नहीं है, कितना हमारा एंगल है 57% है और डिग्री है हमारी 205.2। इसका मतलब ये सारा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट, this total part is showing 205.2 degree of the total circle,
टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये जो बीच वाली लाइन थी 180 वाली लाइन, उसको आपने इरेज कर देना है, क्योंकि अदरवाइज डी पे 180 होते हैं तो हम दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए। ठीक, नाउ सिंस इन दिस क्वेश्चन ओनली 3 सेक्टर्स आर गिवन, 3 ही वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट हो गया हमारा 17%, ये पार्ट होगी परसेंटेज वैल्यू 57, तो थर्ड वन को नथिंग टू बी डन, दैट विल बी ऑटोमेटिकली लेफ्ट, दैट इज 26%। डिग्री है हमारी 93.6, तो ये ऑटोमेटिकली ही 93.6 डिग्री होगा। अगर आप चेक भी करना चाहो तो आप डी से चेक भी कर सकते हो, क्योंकि 3 वैल्यूज ही हैं, 3 में से 2 हमने बना दी तो तीसरी अपने आप ही बच जाएगी, ऑटोमेटिकली बची रहेगी। ठीक है, ऐसे ही नाउ फॉर द सेकंड डायग्राम फॉर 2013-14 का, अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा इतना ही बनाया था 16.7 वाला। नाउ दिस इज योर न्यू रेडियस, ये ओरिजिन से, सेंटर से ये वाली लाइन आपकी रेडियस है। नाउ कीप योर डी ओवर हियर एंड जस्ट चेक द एंगल, कितना एंगल है अगला हमारा 93.6। ठीक है, यहाँ डी रख के अपनी सेंटर को चेक करके एडजस्ट करके 93.6, तो ये ऑलमोस्ट आपका ये ऐसे ये पॉइंट आया मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, डी रख के यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो देन जस्ट पिक अप योर डी, टेक हेल्प ऑफ स्केल एंड ड्रॉ ए लाइन शोइंग दिस एंगल 93.6। अब यहाँ पे वी डोंट हैव टू राइट 93, वी हैव टू राइट द परसेंट वैल्यू, दैट इज 26, यहाँ लिख दिया 26%। तो अब आप देखिए 2 पार्ट्स हो गए हमारे, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 16.7, ये हो गया 26, तो रेस्ट कितना बचा हुआ है 57.3, तो ये वाला जो पार्ट है ऑटोमेटिकली दैट इज 57.3। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब इसके नीचे आपने लिख लेना है ईयर्स, लिख लेने हैं एज यू कैन सी हियर, ऊपर ही लिख लो जहां भी आपको स्पेस मैनेज होता है, इस पे लिख दो आप शेयर इन 2012-13, परसेंटेज लिखना है वो भी लिख सकते हो, परसेंटेज शेयर इन 2012-13, और ये है परसेंटेज शेयर इन 2013-14। ठीक है, आफ्टर दिस यू हैव टू मेक इंडेक्स। अगर तो विड्थ ऑफ द शीट इज मोर तो यू कैन ड्रॉ दिस इंडेक्स टूवर्ड्स, एज आई सेड अर्लियर, टूवर्ड्स द राइट साइड। अगर स्पेस नहीं है तो थोड़ा सा सेंटर में करके भी आप बना सकते हो। 3 boxes आर टू बी ड्रॉन, और वट एवर इंडेक्स यू वॉन्ट फॉर शोइंग द डिफरेंस अमंग दीज 3। मान लो कलर लेते हो आप रेड, ब्लू, ग्रीन, तो यहाँ रेड कर देना कलर, प्राइमरी सेक्टर रेड कलर से इन बोथ द डायग्राम्स, सेकेंडरी सेक्टर ब्लू कलर से इन बोथ द डायग्राम्स, एंड टर्शरी सेक्टर विद ग्रीन कलर इन बोथ द डायग्राम। कलर आपकी चॉइस है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, नई कलर्स हैं, नो प्रॉब्लम, पेंसिल से ही आपने जो भी अपने बीच में डिजाइन बनाना है, जो भी आपको ठीक लगे, बट नीट एंड क्लीन। वो आपने जो भी इंडेक्स वट एवर यू आर टेकिंग, दैट इज टू बी शोन हियर इन दीज बॉक्सेस। ठीक है, अच्छा, नाउ दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, नाउ सी द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, कंपेयर द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन, कि मतलब इन द कंट्री दीज 3 सेक्टर्स हैं, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में मान लो दैट इज 100 रुपीज, तो इन 3 सेक्टर्स का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इस बात को हमने कंपेयर करना है इन 2 ईयर्स, कौन सा सेक्टर कितना पार्ट दे रहा है, कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ यू प्लीज कंपेयर, and comparison is to be done with the same sector. Now let us take first primary sector. This is just the interpretation, करना कुछ नहीं है, but we have to understand. Now see 2012 में परसेंट है, इसका शेयर है 17%, and 2013-14 में 16.7%. Now you see carefully, has this percentage contribution, has it increased or decreased? It has decreased. पहले है 17, अब कम होके हो गया 6, चाहे बहुत थोड़ा है, there is negligible fall, slight fall in the contribution. Are you getting my point? पहले 17%, 17 रुपए आ रहे हैं इस सेक्टर से, now 16.7 rupees are coming from primary sector. मतलब there is a slight fall in the contribution of, you can write if you want, आप एक लाइन लिख लो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, देयर इज ए स्लाइट फॉल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन नेशनल इनकम। स्लाइट क्यों लिखा है? क्योंकि सिर्फ 0.3 की ही कमी हुई है, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं हुई है, 0.3 बहुत ही कम होता है, तो इस करके वी हैव सेड देयर इज ए स्लाइट फॉल इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर। Okay, now second thing, now let us see second sector.
दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें 2012-13 में इसका परसेंट कितना है, मतलब इस सेक्टर से हाउ मेनी रुपीज आर गोइंग टू नेशनल इनकम, 57। 100 में से 57 रुपीज जा रहे हैं, ये सेक्टर इतना काम करके दे रहा है, ठीक है। एंड और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2013-14 में कितनी इनकम जा रही है फ्रॉम सेकेंडरी सेक्टर, ओनली 26। अब आप देखो कितना फॉल हो गया, 2550 होते हैं तकरीबन 50%। 50 से भी वी कैन से आप माइनस कर लो, 57 में से 26 माइनस करो जरा, 30 कितना हो गया, ये 31% है ना। सो आप लिखोगे यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा फॉल हुई है, कि जो सेकेंडरी सेक्टर इन दिस ईयर इट वाज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट, और ये 2013-14 में आके इट्स शेयर हैज़ फॉलन ए लॉट। सो आप लिखोगे देयर इज ए सिग्निफिकेंट फॉल, there is a significant fall, significant मतलब very important fall in the contribution of secondary sector। आप इसको ऐसे समझ लो, मान लो किसी पेपर में आपके पहले मार्क्स आए हैं 100 में से 50 और अगली टर्म में आपके मार्क्स आए हैं 100 में से मान लो 26, तो कितना कम हो गया, आधे से आधा 50% की फॉल होगी, तो ये 50% से भी थोड़ी ज़्यादा ही फॉल है। नाउ लेट अस कंपेयर थर्ड सेक्टर। तो थर्ड सेक्टर का क्या है, टर्शरी सेक्टर। अर्लियर इट वाज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 26, 100 में से सिर्फ 26 थे, अब ये बहुत बढ़ के हो गया है 57.3, मोर देन 50% इट हैज स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके पहले मार्क्स थे 24 और अब आपके दूसरी टर्म के पेपर में उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आ जाएं 55 या 60, मतलब पहले से आधे से भी ज़्यादा, ठीक है। दैट मीन्स विच सेक्टर हैज शोन ए ट्रिमेंडस ग्रोथ, टर्शरी सेक्टर। यही हुआ ना, डायग्राम देख के हमें पता चल रहा है कि कौन से सेक्टर ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, डेवलपमेंट की है, प्रोग्रेस की है। तो ये सेक्टर ने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस की है, टर्शरी सेक्टर ने। और किस सेक्टर में डाउनफॉल हुआ है, तो वो आ जाएगा आपका ये वाला सेकेंडरी सेक्टर। और कौन से सेक्टर में एक बड़ा मामूली सा चेंज हुआ है, वेरी लिटिल चेंज इज देयर, दैट इज इन प्राइमरी सेक्टर। तो समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑल्सो आफ्टर व्यूइंग द पाई डायग्राम। तो ऐसे आपने तो जितने भी सेक्टर्स हों, ये तो ऐसे 3 सेक्टर्स का था, मोर देन 3 भी हो सकते हैं, तो फिर आपने नीचे ऐसे लाइंस बना के यू हैव टू राइट। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, this was all about this diagrammatic chapter. With this lesson comes to an end. अच्छा, अब इसका एक या दो बेनिफिट हम समझ लेते हैं, just for simple understanding. Now we have done all types of bar diagrams and pie diagram. What are the benefits, advantages? तो advantage क्या है, simply कि any ordinary person can understand the concept by viewing the diagram. ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग इकोनॉमिक्स स्टैट्स पढ़ रहे हैं तो ओनली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आप ये ऐसे डायग्राम, ये वाला डायग्राम किसी को भी दिखा दें, कोई भी अनजान आदमी हो तो वो भी देख के बता सकता है भाई हाँ जी भाई इसका हिस्सा कम हुआ है और इसका हिस्सा बड़ा है, कोई भी इसको समझ सकता है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट कि भाई एनी ऑर्डिनरी पर्सन, एनी लेमैन कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक, द गिवन प्रॉब्लम बाय जस्ट व्यूइंग ए गिवन डायग्राम, ठीक। सेकेंड इज कि ये जो डायग्राम्स हैं दे आर इजी टू ड्रॉ, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, विद लिटिल ट्रेनिंग, थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री का काम आता हो, स्केल पेंसिल यूज़ करना आता हो, कंपास वगैरह, तो एनी पर्सन कैन ड्रॉ दीज डायग्राम, मीन्स दीज आर इजी टू ड्रॉ, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एंड थर्ड वन इज अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, क्योंकि इंस्टेड ऑफ, अब आप देखो ये सारा हमने टेबल बनाया कैलकुलेशन का, तो किसी को कहो कि कैलकुलेशन पढ़ो समझो, बड़ा डिफिकल्ट सा लगता है, बड़ा कुम्बरसम वर्क होता है। कुम्बरसम मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी सी फील होती है कि कितना कौन कैलकुलेट करे, इतने सारे काम धाम करे। तो उसकी बजाय अगर हमें कोई कहे कि सिर्फ ये डायग्राम देख के समझा दो तो वेरी इजिली वी कैन डू दिस वर्क। तो डायग्राम्स जो होते हैं दे प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल डायग्राम, तो सिंप्लिसिटी इज देयर, easy to understand, easy to draw, and simple to understand also, simple to analyze also, simple to make a comparison also. So we can make the comparisons also with the help of diagrams. बस ये 2-3 एडवांटेज लिखने हैं इसके, ठीक है। और इसका ड्रॉबैक क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का, एक ही ड्रॉबैक है इसका कि ये जो डायग्राम्स होते हैं दे डू नॉट शो अस द एग्जैक्ट वैल्यूज,
अभी आपने देखा बार डायग्राम्स में भी, इसमें भी ये जो पॉइंट पॉइंट की वैल्यूज आती हैं, इतना ज़्यादा माइन्यूटली तो नहीं ना हम बना सकते, थोड़ा बहुत हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, अभी इसके सामने पड़ रहा है ये इतनी वैल्यू है, तो इसका मतलब एग्जैक्टनेस इज मिसिंग, 100% accuracy is missing, 100% correct data presentation is not there. These diagrams they just show approximate values. ठीक है, बस ये इसका माइनस पॉइंट है, अदरवाइज इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक, दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बस इतना सा ही करना है आपने. सो यू मे गेट डेफिनेशंस ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स और डेफिनेशन ऑफ पाई डायग्राम या सिंपल डेफिनेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, बस ये आएगा. अदर देन दैट मेन स्ट्रेस विल बी ऑन द प्रैक्टिकल पार्ट. Any question will be given to you and you will be asked to draw this or that diagram. In case in the statement nothing is written कि draw, आगे कोई नाम कुछ भी नहीं दिया है, बस इतना लिखा है, only this much is given कि draw a suitable diagram. ठीक, draw a suitable diagram. तो in that case you yourself have to decide कि with the given data which diagram can be drawn. आपको सोचना पड़ेगा उस टाइम पे. एंड मोस्टली इट हैपन्स इन केस ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम एंड सब डिवाइडेड बार डायग्राम, क्योंकि वहाँ पे हम लोग दोनों ही डायग्राम, एक ही डाटा को दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं. तो बोथ विल बी राइट. सम स्टूडेंट्स मे ड्रॉ मल्टीपल बार डायग्राम विद द सेम डाटा, सम स्टूडेंट्स मे ड्रॉ सब डिवाइडेड, तो दोनों ही ठीक है, बोथ विल बी करेक्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. बट इन केस इन द स्टेटमेंट इट इज गिवन कि भी ड्रॉ simple bar या draw percentage bar या draw pie diagram, then you have to draw that very diagram. I hope you have got the points which I want to convey. ठीक है जी. So with this we end this chapter. Next chapter is chapter number 7. You can see in your book also, and name of the lesson is frequency diagrams. You can please check the book. पाई डायग्राम की घर पे अपने आप प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज और सॉल्व क्वेश्चन देख के, और आपने प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, बिकॉज इन द पीरियड, दिस जूम मीटिंग पीरियड, वी कैन नॉट डिवोट टाइम टू प्रैक्टिस वर्क, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ. सो 7th चैप्टर इज फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. ठीक है, नाउ इन दिस द diagrams which are in syllabus you can note down as is given in the title of the chapter also. One, we have to do histogram. Second, we have to do frequency polygon. And thirdly, we have to draw ogive. Ogive नहीं है ये. Some students pronounce it as ogive. Ogive नहीं बोलते बेटे इसको. Ogive, J वाली sound. Ogive, or the same is also called cumulative frequency curve. You may note down ogive, or the same thing is also known as cumulative frequency curve. ठीक है जी. So let us understand कि what is meant by frequency diagrams. So name से ही clear है. Frequency diagrams are those diagrams in which frequencies of the given distribution are shown on the graph paper. ठीक है. Frequency diagrams are those diagrams in which frequencies of a given distribution are shown in the form of diagram, but on what? On a graph paper, not on simple sheet. This is the peculiar characteristic, special characteristic of this presentation. So frequency diagrams are those diagrams in which frequencies of the given data, given numerical value, they are shown on the graph paper. Then 3 types are there: histogram, polygon and ogive. ठीक है. So what is meant by histogram? Histogram means, you can write or it is given in the book also, histogram means the graphical presentation of a continuous frequency distribution on a graph paper. Histogram is the graphical presentation of a continuous frequency distribution. या continuous frequency distribution को simply क्या बोल देते हैं? Continuous series. और easy करना हो तो ऐसे भी बोल सकते हैं. Histogram means presentation of, graphical presentation of a continuous series on the graph paper. ठीक है. अब आप थोड़ा याद करिए, how many types of series are there? 3 series are there: individual, discrete and continuous. So nothing to be done with individual series, nothing to be done with discrete series.
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किस में होती है? इंडिविजुअल सीरीज में तो देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, वो तो कैंसिल हो गया, उसका तो काम ही खत्म. देन सेकंड डिस्क्रीट सीरीज होती है, उसमें भी फ्रीक्वेंसी होती है, बट उसको हिस्टोग्राम नहीं बोला जाता. अगर हम उसको प्रेजेंट करें तो दैट इज नॉट कॉल्ड हिस्टोग्राम. तो व्हाट इज लेफ्ट विद फ्रीक्वेंसी, विच सीरीज इज लेफ्ट? कॉन्टिन्यूअस सीरीज. तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज को जब वेन एवर वी प्रेजेंट ऑन द ग्राफ पेपर, तो दैट पर्टिकुलर टाइप इज नोन एज हिस्टोग्राम. ठीक है, उसके बाद यू प्लीज राइट दिस. हिस्टोग्राम can be drawn with equal class intervals and with unequal class intervals. Equal class intervals and with unequal class intervals. अभी last minute is going on, so I will not start the question. Don't worry. अब आपने क्या करना है? Tomorrow you just be ready with graph papers. एक graph notebook ले लो. Notebook नहीं है तो you can arrange graph papers. All this work of this chapter is to be done on graph paper. ठीक है, आज के लिए यही खत्म करते हैं. राइट बेटे, ग्राफ पेपर्स आर टू बी अरेंज्ड. आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ दिस टुमारो. आई विल सेंड. ठीक है, हिस्टोग्राम विद इक्वल एंड विद अनइक्वल इंटरवल्स. सो टुडे यू जस्ट डू द प्रैक्टिस ऑफ पाई डायग्राम्स एंड बार डायग्राम्स. ठीक, कल हम ये काम स्टार्ट करेंगे. थैंक यू ऑल. नाउ वी आर गोइंग टू एंड द मीटिंग. सुखजीत मैम, यू कैन एंड द मीटिंग नाउ.